Hello my beautiful souls and welcome to my channel The High Priestess Tarot. I don't know what happened to me today. I just got that urge to do a reading. I don't know why, but I just wanted to do a reading for you all guys. I believe the universe wants that messages to be sent to you. Okay, to be very honest. And अभी बाहर बहुत ज़्यादा cloudy भी हो रहा है. I guess thunderstorm हो रहा है and I guess it will be raining. So let's start with our reading. I guess universe also wants me to send this messages to you. So I have brought two piles in front of you. Pile 1 will be this beautiful Light Seeds tarot deck and pile 2 will be this Rider-Waite tarot deck. Okay, so whichever you feel drawn to, go with that deck. Okay, so I'm going to start with pile number 1, the Light Seeds tarot deck. And I always say this is a general reading. Take whatever resonates, leave rest behind, okay? And it is also a timeless reading. Now, let us start with pile number 1. Hello pile number 1, whoever has choose this beautiful The Light Seeds tarot deck, this reading is meant for you, and I'm definitely very much sure that if you are watching this video, you are meant to receive some very important messages, okay? That's why I'm doing this video today. Okay. So what messages or what important things that pile number 1 needs to know? So what things or what messages, what important details the pile 1 needs to know? Okay, when I was shuffling the card, I saw this card, the World card, at that time also. So this is what you meant to receive. Okay. You are ending some phase in your life, definitely. कुछ तो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई फेज है जो ओवर हो रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी मच इमोशनल अबाउट इट. आपके सारे इमोशंस उस चीज़ों से जुड़े हुए हैं and you require to balance that. Okay, you require to balance your emotions because right now you are feeling lot of emotions are going on inside you. Okay, अब बहुत सारे emotions feel कर पा रहे हो and कुछ तो phase आपका over हो रहा है. So you need a balance in your life. Okay, you have to make a balance. Yes. I can see financial stability, okay, coming your way. अगर चीज़ें past में थोड़ी financial crisis थे या फिर finance आपका stable नहीं था, expenses ज़्यादा थे, earnings कम थी, तो वो financial stability भी मैं देख रही हूँ. कई हद तक आपके finance balance होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है and एक positive news मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है. You will feel free, you will feel alive, you will basically मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपके दिल में कोई burden है किसी चीज़ का, तो वो burden मुझे release होता हुआ नज़र आ रहा है. I can see that you are releasing that burden. ठीक है, अगर कोई कुछ end कर रहे हो, आप definitely कुछ end कर रहे हो and you are thinking about that. You are basically, see I'll tell you, क्योंकि मैंने ना जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मैंने ये कार्ड और ये कार्ड उस टाइम पे भी देखा था, ये अपने आप पॉप आउट हो गया था आपके कार्ड्स में से.
ठीक है। तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली जो भी ये पाइल, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया, दे आर वेरी लॉजिकल पीपल, ओके, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। जो भी आप डिसीजन बनाते हो या जो भी आप चीज़ों को लेते हो अपनी लाइफ में या कोई भी प्लानिंग करते हो, तो आप बहुत सोच समझ के लॉजिकली प्रैक्टिकली डिसीजन बनाते हो। अपना हार्ट थोड़ा साइड में रखते हो और ज़्यादा अपना ब्रेन का यूज़ करते हो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। यू आर वेरी लॉजिकल पीपल, ओके। यू वेर वेटिंग फॉर समथिंग टू गेट ओवर। आप कुछ तो वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का तो वेट कर रहे हो ओवर होने का, और वो फेज़ मुझे ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके वजह से यू आर फीलिंग लॉट ऑफ इमोशंस इनसाइड यू, ठीक है। एक टर्बुलेंस की तरह एक इमोशंस से आप मतलब अभी जूझ रहे हो, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं क्योंकि वो चीज़ ओवर हो रही है, और उस चीज़ से काफ़ी अटैच भी मुझे आप नज़र आ रहे हो। बट इट विल एंड इन अ गुड नोट, डोंट वरी, ओके, एवरीथिंग विल वर्क आउट वेरी वेल and you will be able to make a balance between your emotions and yourself. And what else? Let me dig out some more. What else for pile number 1? Okay. Yes, you are feeling little confused, okay? You don't know कि ये चीज़, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है तो आप थोड़ा सा डाउटेड हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी या चीज़ें कैसी निकल कर आएगी चीज़ ओवर होने के बाद। तो लेट मी टेल यू कि डोंट वरी, ओके। अगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर, द पाथ ऑन विच यू आर मूविंग, इफ़ यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड राइट नाउ, just leave everything to the universe, okay? Universe has better plans for you, okay? They guide you and show you the right path to walk in, okay? तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा मतलब सोचो मत उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि अपने आप ही जो चीज़ विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, इट विल गेट ओवर, ओके? You are going to release all the things which is not serving you anymore. Don't feel confused because things are going to work out positive in your way. Okay, ये भी कार्ड निकला था. Okay, so I'm definitely seeing that a shift, एक shift हो रहा है. आप ये मूवमेंट भी हो सकता है, एक्चुअल मूवमेंट, एक्चुअल शिफ्ट भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है दैट यू माइट शिफ्ट समवेयर, यू माइट शिफ्ट टू सम अदर कंट्री, सम अदर सिटी. ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर आप एक शिफ्ट करो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ कहीं और. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव ऑफ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है. तो एक शिफ्ट हो रहा है इमोशनली, एक शिफ्ट आप महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में. डेफिनेटली कोई शिफ्ट तो है, एक फेज आपका ओवर हो रहा है, समथिंग इज एंडिंग एंड इट इज कमिंग टू एन एंड एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस. यू आर डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस वेयर यू विल फाइंड रिलैक्स, stability, financial stability, happiness. You will be able to balance your personal and professional life, okay? Now, any more important thing or any more important message that pile number 1 needs to hear? Definitely, pile number 1, definitely you are ending something, okay? You have hit a rock bottom, I must tell you. आपने बिल्कुल एक कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आप ओवर करने जा रहे हो, वो चीज़ रिलीज करने जा रहे हो. यू माइट बी इन अ पॉज मोड, ठीक है. कुछ टाइम से आप, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप पॉज मोड में हो, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन. सो इट इज़ अ टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिव इमोशंस and everything which is not serving you anymore, okay? So it is time to release your past, release all the things which are not meant to you or which are not
meant to serve you anymore, and you have to believe in yourself. You have to believe in the universe. Okay, universe will do their work. The universe is going to wash away all the things which are not meant for you. So अगर आप एक नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मली रिलीज करोगे एक पैटर्न को तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू पाइल नंबर 1. आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन how much it resonated, and are you really going through this situation where you are releasing something or some past experiences which is required to be released. Okay, so thank you so much for watching, and do like, subscribe my channel. Thank you. See you in the next video. Hello pile number 2, whoever has choose this beautiful Rider-Waite tarot deck. Welcome. Now we are going to check out what important messages or what important things that you need to hear right now. Okay, messages pile number 2 is meant to hear. आपके लिए क्या important messages या क्या important information है जो आप सुनना चाहते हो या आपके लिए बनी है. Okay, pile number 2. I can see that you are working on something. Okay, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी ये पाइल देख रहे हैं, not for everyone, for very specific number of people, okay, who are watching this video, you might be learning something. ओके, मेरे को 2-3 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं. एक सिनेरियो तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एंड यू आर राइट नाउ अबाउट टू स्टार्ट योर करियर. ठीक है. एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर यू आर वेटिंग टू स्टार्ट फॉर अ करियर और आप थोड़ा सा मतलब डर रहे हो या हिचकिचा रहे हो आगे बढ़ने में, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए या क्या आपको आगे फर्दर परस्यू करना चाहिए, तो लेट मी टेल यू दैट you will be getting lot of help and support. Okay, you will get a right direction to move. You have to believe in yourself and you have that support with you. Okay, आपके पास कोई ना कोई बहुत ही अच्छा support है, कोई ऐसा इंसान आपके साथ है who is very loyal and protective towards you. Okay, and he is definitely going to guide you. एंड आप थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उस डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ इंडिविजुअल. ओके, आई कैन सी यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन यू. यू जस्ट नीड टू फॉलो. इफ समबडी इज गिविंग यू एनी एडवाइस, ओके, पीस ऑफ एडवाइस, देन यू शुड टेक दैट एडवाइस एंड यू शुड मूव फर्दर इन योर लाइफ. ओके, सो मैं एक ही सिनेरियो ये देख पा रही हूँ. दूसरा सिनेरियो में लेट मी जस्ट take out some more cards and clarify what else for pile number 2. What else for pile number 2? Okay, see, दूसरा सिनेरियो जो मैं देख रही थी बट आई जस्ट वांटेड अ क्लैरिफिकेशन. दूसरी सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे पेरेंट्स को कन्विंस करने की शादी के लिए या फिर वो अपने पार्टनर के लिए, यू वांटेड टू कन्विंस योर फैमिली, देन मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है दैट योर पेरेंट्स आर गोइंग टू कन्विंस, ओके, फॉर दैट पर्सन. एंड मुझे एक सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है.
डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स विल गेट कन्विंस, ओके। अगर आप बहुत टाइम से आप उनको मना रहे थे अपने पार्टनर के लिए कि मुझे इससे शादी करनी है या दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, तो मैं ये काफ़ी देख पा रही हूँ कि काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्दी आपको। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। ये सबके लिए नहीं है, फॉर स्पेसिफिक पीपल आप रेजोनेट कर लोगे अपने आप से। आपका अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर डेफिनेटली मुझे कोई सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, यू माइट गेट इंगेज्ड और सम कमिटमेंट, एक फैमिली की तरफ से भी कमिटमेंट मुझे नज़र आ रही है। एक कमिटमेंट आप अपने पार्टनर को दोगे, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड योर फैमिली, ओके। सो आई कैन सी सेलिब्रेशंस एज वेल। नाउ लेट अस सी कि और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। और अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं है, क्योंकि सब इस सिचुएशन के साथ रिजेंबल नहीं करेंगे, इट इज़ मेंट फॉर वेरी फ्यू, तो अगर और क्या इंफॉर्मेशन है फॉर अदर्स, व्हाट अदर इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 इज मेंट टू रिसीव, ओके। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? Definitely you are going to get some news. It might be regarding your career, कोई नई career opportunity आपको मिले and you are just you will be just ready to walk in that, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली मेरे को एक करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर करियर। एजुकेशन परस्यू की है एंड दे आर वेटिंग टू गेट अ न्यू स्टार्ट, सो डेफिनेटली some good news is coming, some career opportunity is coming। आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आप अपना करियर को एक बूस्टअप कर सकते हो और एक स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर, ठीक है। तो करियर फ्रंट पे भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव और पोटेंशियल नज़र आ रहा है। एज वेल एज अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी एक न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हो करियर वाइज, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। आपकी जो भी पोटेंशियल है या जितना भी आप जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर, तो आप डेफिनेटली मुझे काफ़ी हाई कैपेबिलिटीज़, मुझे पहली बात तो काफ़ी हाई कैपेबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या जॉब सीख करने की कोशिश कर रहे हो, आपको डेफिनेटली बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी। एंड यू नीड टू टेक अ वाइज डिसीजन, ओके। एंड डेफिनेटली आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से सब कुछ ओवरऑल देखकर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड विच विल गिव यू फाइनेंशियल सक्सेस एज वेल, ओके। अगर आपके पास कोई ऑफर आ रही है तो इट विल गिव यू गुड पे एज वेल, ओके। सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी भी आपको मिलेगी विच विल गिव यू अ बैलेंस एंड सेटिस्फैक्शन, ओके। जितना आप डिज़र्व करते हो उस हिसाब से आपको सैलरी भी मिलेगी। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट एल्स? I can definitely sense a commitment, okay, for those who are in love and want a parent's decision on that. Definitely I can see कि आपको मैरिज के लिए अगर जो भी लोग वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आई कैन सी अ पॉजिटिव थिंग्स कमिंग टू यू, ओके, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट। कई लोगों को कोई लव ऑफर भी मिल सकता है, ओके, दोज हु आर सिंगल एंड ready to mingle, so they can receive a love offer as well. Very good news are coming your way, pile number 2. Job opportunity for few, love offer for few, and marriage for few as well, commitment. I'm really happy to see this beautiful cards coming out for you. जो भी लोग फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही मैसेजेस करूँगी कि आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। फाइनेंसेस में भी काफ़ी आपका पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है, चीज़ें मूव होती हुई नज़र आ रही है एंड 100% डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव सम न्यूज़। सी एस ऑफ वॉन्ड्स,
Okay, that something new is coming your way. Page of Pentacles एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली फाइनेंस में करियर वाइज मुझे मूवमेंट नज़र होती हुई आ रही है, स्लो एंड स्टेडी बट बहुत अच्छी मूवमेंट मुझे नजर आ रही है फाइनेंसेस में. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी. ये जो भी पाइल नंबर 2 जो भी देख रहे हैं आप, जिन्होंने भी चूज किया है, एक चीज तो मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ तो नया आने वाला है. ठीक है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई न्यू लव प्रपोजल हो, चाहे मैरिज हो, कुछ ना कुछ तो नया आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है इन कमिंग डेज. एंड यू आर गोइंग टू रिसीव वेरी सून, वॉन्ड्स की एनर्जीज है. Very soon you are going to receive some good news regarding your career, regarding job opportunity, regarding love proposal, regarding marriage, whatever you are seeking for. Okay, you can resonate with yourself कि जो भी सिचुएशन में आप हो और क्या रेजोनेट कर रहा है. सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू पाइल नंबर 2. आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग. डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन हाउ मच इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. Thank you so much for giving me your precious time and watching my videos. Thank you so much. See you in the next video.